کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو کتاب میں لکھا ہوا ہے 22 پیج نمبر 22 پہ کہ وہ شخص جو مزار پہ جائے یا نبیوں سے یا ولیوں سے مدد طلب کرے، خواہ اس کا عقیدہ یہی ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اس میں انہوں نے ہم لوگوں کو یعنی سنیوں کو ابو جہل کی طرح مشرک بولا ہے، اور جو دیوبندی عوام ہے وہ بھی ہمیں مشرک بولتی ہے، چونکہ کتاب میں لکھا ہے، تمہارے اکابر نے لکھا ہے تو مشرک وہ ان نے لکھا ہے تو پھر عوام بھی بول رہی ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ آپ دیوبند کا ویب سائٹ کھول کے دیکھیں۔ ہاں، میں نے دیوبند کی ہی کتاب بتائی ہے نا، تقویت الایمان۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دارالعلوم کا ویب سائٹ کھول کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کوئی فتویٰ اگر آپ کو دکھتا تو ہمیں بتائیں۔ میں نے جو بڑی کتاب ہے جس کے بارے میں رشید احمد گنگوہی جو ہے آپ کے، میرے بھائی ایک منٹ میرے بھائی، میں آپ سے کیا کر رہا ہوں حضرت، اس میں رشید احمد گنگوہی صاحب آپ کے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو تقویت الایمان ہے یہ مطلب عین اسلام ہے، ایسا کچھ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، مطلب اس کو تقویت دے رہے ہیں بہت اس کتاب کو، اور آپ کے اکابر بھی ہیں اسماعیل دہلوی، تو اب جو انہی کی کتاب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیوبند کا فتویٰ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ آپ ایک دفعہ دارالعلوم ویب سائٹ تو دیکھیں، تقویت میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو، آپ نے الزام لگایا کہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو ذرا بتائیے دیکھ کر کے کہ دارالعلوم کے کسی فتویٰ میں یا ویب سائٹ پر ایسا لکھا ہوگا؟ حضرت اسماعیل دہلوی جو ہیں آپ کے، وہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے اکابر نہیں ہیں؟ ان کی کتاب آپ دیوبندی پڑھتے نہیں ہیں؟ مفتی اسماعیل دہلوی صاحب کب کے ہیں پتہ ہے؟ ہاں، وہ جب کے بھی ہیں آپ کے اکابر تو ہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، ہاں ایسے ہی ہے، لگ بھگ 150 سال پرانے ہیں غالباً۔ تو دارالعلوم کے تو بنیاد پر 150 سال نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ کتنا ہوا ہے آپ بتائیں۔ 1964 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد پڑی ہے۔ ہاں تو دارالعلوم کی بنیاد سے تو پہلے ہی جو ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب نور اللہ مرتضی ہیں۔ ہاں، وہ پہلے کے ہیں نا، لیکن جو ہمارے اکابر کیسے وہ آپ کا اکابر کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں سنیے، لیکن دیوبندی ان کو اپنا اکابر کہتے ہیں وہ ہمارے اکابر ہیں۔ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ میرے بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے اکابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو وہ مشرک لکھ رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ان کو علماء دیوبند سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ علماء دیوبند کر رہے ہیں تو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اکابر ہیں، اور ان کی کتاب تقویت پڑھنا یہ عین اسلام۔ ایسے کوئی بات میرے بھائی نہیں ہے۔ رشید احمد گنگوہی لکھ رہا ہے نا یہ چیز اپنی کتاب میں۔ صفحہ نمبر 22 پر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 22 پہ ہے کہ جو مزار پہ جائے یا انبیاء و اولیاء سے مدد طلب کرے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یہ بات آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب اپنی تقویت الایمان پیج نمبر 22 مزار پر جائے انبیاء اولیاء سے مدد طلب کرے۔ ہاں، انبیاء اولیاء سے مدد طلب کرے کس اعتبار سے؟ ان کو خدا سمجھ کر کے نہیں، ان کو نبی ہی سمجھے، اللہ کا بندہ ہی سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے، تو بھی ابو جہل جیسا مشرک ہے۔
ये लिखा उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये कि तक़वियतुल ईमान में शायद ये बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। खैर देखिए, आप जो है कि उलमाए देवबंद का वेबसाइट देखें, दारुल का वेबसाइट देखें, वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। हजरत मैंने किसी ने तक़वियतुल मुशरिक नहीं कहा। ईमान पढ़ी है लाइव खुद अरे ही। मेरे भाई, तो आपने तक़वियतुल ईमान कभी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता। मेरे पास मौजूद तक़वियतुल है, ईमान के अंदर कौन से सफ़ा पर है? पेज नंबर 22 पे। तो पेज नंबर 22 में वो है ही नहीं। हाँ, देखें, मैं आपको कहाँ से भेजूं, छपी व्हाट्सएप हुई है है? आपका? कहाँ से छपी हुई है? हाँ, तो उसी पे लिखा होगा, पढ़ लेना आप। व्हाट्सएप है आपका? आप बोले कहाँ से छपी हुई है? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ ना तक़वियतुल ईमान कहाँ से छपी है। ये एक मिनट देखना पड़ेगा, एक मिनट निकाल। आपने मुफ्ती इस्माइल साहब देहलवी को उलमाए देवबंद का काबिर बना दिया। या निकल होकर के अगर उलमाए देवबंद कह देते हैं तो मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मेरा काबिर है, तो फिर वो भी तो उलमाए देवबंद में शामिल हो जाएंगे। किसी को भी अगर उलमाए देवबंद कह देते हैं तो सब हमारे हो जाएंगे। जनाब, इस्माइल दहलवी जो हैं वो देवबंदियों के ही मौलवी और अकाबिर हैं। ये आप मतलब नई बात कर रहे हैं कि वो आपके अकाबिर नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देवबंद की बुनियाद 1964 में पड़ी है और इस्माइल देहलवी साहब देवबंद की बुनियाद पढ़ने से पहले से जा चुके हैं। आप उसको सिर्फ मेरे अकाबिर क्यों कह रहे हैं? यानी कि देवबंदी जब से देवबंद मदरसा बना है तभी से हैं, उससे पहले नहीं थे। आप उनकी तारीखी वलादत देखिए। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मदरसा देवबंद जब से बना है तभी से देवबंदी है, इससे पहले देवबंदी नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं, यही तो सबूत आप दे रहे हैं कि देवबंदी पहले से था। ऐसा नहीं है, सबूत आप खुद अपने जुबान से कह रहे हैं। हाँ ठीक है, देखें, देवबंद किसी मजहब का नाम नहीं है, एक बस मकतब फिक्र का नाम है। हो गया ना? तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, जो आपके ये अकाबिर हैं लगभग लमसम आज से 150 साल पुराने, वो आपके वो लिख रहे हैं ना कि ये काफिर है, अबू जहल जैसा मुशरिक है। अगर उनका अकीदा ये हो कि साहबे कब्र हमें दे सकते हैं, हाँ तो कब्रों के अंदर ये बताइए, साहबे कब्र हमें दे सकते हैं, अगर उनका अकीदा ये भाई साहबे कब्र तो खुद अपने इख्तियार से कुछ कर नहीं सकते हैं तो दूसरे को कैसे दे देंगे? आज आप देखिए कि लोगों का क्या अकीदा बना हुआ है। यानी आप भी वही कह रहे हैं कि वो, यानी आप भी यही कह रहे हैं कि मुशरिक हैं वो लोग? नहीं, मुशरिक मैं नहीं कह रहा हूँ। बार बार नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज आप देखिए कि लोग मस्जिद के अंदर नहीं आ रहे हैं लेकिन मजार पर जाकर के काफे चढ़ा रहे हैं, जाके वहाँ खरीदारी। जो मस्जिद में ना आए डायरेक्ट मजार पे जाए वो गलत है, मस्जिद छोड़ के मजार पे नहीं जाना चाहिए, तो हमारे उलमा किराम कहते हैं। मैं तो वो कह रहा हूँ ना हजरत कि वो आपके मौलवी ने लिखा है कि वो अबू जहल जैसा मुशरिक है जो नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगे। नबी अलैहिस्सलाम मांगे? हाँ, नबी अलैहिस्सलाम नबी तो ही है, नबी से मदद मांगने के मुताबिक है। हाँ बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम नबी ही तो हैं। वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं वहां पे, नबियों से, औलिया इकराम से, किसी से भी। आप दो तरह की बात बोलते आ रहे हैं भाई। तक़वियतुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में है, 22 नंबर सफा पे ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये देखें, ये मुंबई से छपी है। हाँ, तो मुंबई से छपी होगी, हो सकता है मुंबई से छपी होगी, अब मुझे पता नहीं भाई। हाँ, हाँ, माशरत सलफिया मुंबई, ठीक है, यहाँ पे देखें वहां से लिखा हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बता रहा हूँ जहाँ तक आप लिख रहे हैं, और हमारे जीवन में एलानिया तौर पर मेरे ख्याल से आज मीडिया पर ऐसा बहुत होगा जो होगा जो इसको मुश्किल कर रहा हो। मैं पढ़ के सुना देता हूँ ना आपको, पेज नंबर 20 पे। ना आप भाई, लेकिन उलमाए जिब्रैलवी है, मेरे ख्याल से एक नहीं हजारों ऐसे मिलेंगे जो उलमाए देवबंद को मुश्रिक काफिर कहते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सवाल करता? हमने आपसे नहीं पूछा कि आप हमें फिर क्यों कहते हैं? किसे?
छोटे मोटे उलमा, बड़े उलमा, सारे के सारे उलमा अच्छा, देवबंद इस्माइल को ताकीद दहलवी करते जो हैं। है वो आपके बड़े उलमा है ना? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं? इस्माइल देहलवी को आप हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब आप उन्हें, आपके हमसे क्यों देवबंदियों जोड़े? के अकाबिर नहीं है वो? नहीं, आपके अकाबिर नहीं है? ना, हमारे नहीं है। क्यों नहीं है आपके अकाबिर? भाई वो हमें मुशरिक कह रहे हैं, हमारे अकाबिर कैसे होते हैं? उन्होंने अपनी इसी नहीं, तकवियतुल उन्होंने ईमान के, उन्होंने आपको, उन्होंने हजरत एक सुनिए मिनट, एक सुनिए मिनट, सुनिए ना, मेरी उन्होंने बात तो सुनिए सुनने पहले में, सुनिए, जैसे मुकम्मल उन्होंने जवाब दे दूं, आप सुनिए पूछ रहे हैं ना। नहीं सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बरेलवी मुशरिक है। यार नबी उन्होंने तो अलैहिस्सलाम से ये नहीं कौन कहा। मांग रहा है हजरत? नबी मैं अलैहिस्सलाम से कौन मदद मैं मांग रहा क्या है? कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि बरेलवी मुशरिक है। तो अगर कहा हो तो बताइए। उन्होंने एक डायरेक्टली, नहीं, सुने, उनने डायरेक्टली ये कहा है ना कि जो नबी अलैहिस्सलाम से, नबियों से मदद मांगे वो अबू जहल जैसा मुशरिक है, तो हम ही तो मांग रहे हैं। प्लस एक तो ये हो गया, और दूसरी बात, पेज नंबर 100 पे तकवियतुल ईमान में उन्होंने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं इसी मरकर मिट्टी में तकवियतुल मिल गए। ईमान में उन्होंने लिखा है, अल्लाह के नजदीक छोटी और बड़ी तमाम मखलूक चमार से ज्यादा जलील है। पहली बात तो मरकर मिट्टी में मिलाई, ये बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल लिखी हुई हदीस इसमें। मुकद्दस है कि नहीं, हदीस मुकद्दस में है कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर ये हराम कर रखा है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। अगर लिखा है तो ये गलत है। हाँ, पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो आप लोगों ने लिखा है हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो अब ये इतने खतरनाक अकीदे उन्होंने अपनी किताबों में लिखे, तो हमारे अकाबिर कैसे हो सकते हैं वो? क्या और उन्होंने प्लस हवाला नहीं दिया देवबंदी था? ही हमसे उनके नहीं दिया बारे था। में कहते हैं, देवबंदी ही उनके बारे में कहते हैं कि ये हमारे अकाबिर हैं। हम तो कभी मैं नहीं क्या कहते कर रहा हूँ, कोई उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया था। कि नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस पर कोई हवाला नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, निकालें पेज सफा नंबर 100, नंबर निकालें 100। तकवियतुल ईमान का। मैं देख रहा हूँ पेज नंबर 100 मैं देख चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो आपका क्या ठीक पढ़ है, रहे हैं आप? पेज नंबर 100 नहीं पढ़ रहे हैं फिर आप? हाँ भाई, मैं पेज नंबर 100 ही पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ आपका बताइए पेज व्हाट्सएप नंबर 100 चालू है पे इसी नंबर से? बताइए कौन सी हदीस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज नंबर 100 पे कौन सी हदीस है? मैं आपको भेज देता हूँ एक मिनट। आपका व्हाट्सएप बताइए। नहीं नहीं, वो तो नहीं, मुझे बताइए ना, पेज नंबर 100 पे कौन सी हदीस बताइए आप। हाँ, पेज नंबर 100 पे नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उन्होंने वो हदीस शरीफ लिखी है, जिसमें हजरत कौन सी एक बताइए। सहाबी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आके कहते हैं कि फला जगह के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे थे, हम आपको कर सकते हैं क्या? वो वाली हदीस के नीचे उन्होंने लिखा है, इस्माइल दहलवी हाँ, जो तो है अल्लाह के रसूल उन्होंने ने क्या लिखा कहा? है, सुनिए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मुझे कर सकते हैं? ना ना, नहीं कर सकते, उन्होंने ये लिखा। तो उसके बाद तो फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पे, उसमें सुनिए तो सही, जब अल्लाह के रसूल को सजदा नहीं कर सकते, अरे मैं वो तो नहीं कह रहा फिर हूँ, वलियों को सजदा भी क्यों कर अरे रहे हैं? वो नहीं कह रहा हूँ ना, वलियों को भी सजदा नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ फिर इसी तो फिर हदीस क्यों के लोग कर नीचे रहे उन्होंने हैं? लिखा। तो फिर लोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, लोग क्यों कर रहे हैं? आज तक मेरी किसी बात भी सुनिए ना, एक उलमाए मिनट। बरेलवी ने मना किया है क्या? हाँ सुनिए, तो यहीं पर उन्होंने लिखा हाँ, कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मुझे सजदा कब जायज है, मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम पे उन्होंने झूठ बोला है, जिसकी कोई दलील भी नहीं दी, हदीस शरीफ में ऐसा नहीं है लिखा हुआ। तो ये सारे अकीदे उन्होंने दिए, तो हमने तो इन पे गुस्ताखियों से फतवे लगाए कि भाई वो गलत बोले, गलत लिखा, उन्होंने किताब ही गलत है पूरी। लेकिन देवबंदियों ने कहा किताब सही है, इसको पढ़ना है, इस्लाम है, ईमान है। तो भाई देवबंदियों ही के तो अकाबिर हुए। ये सोचिए आप। प्लस आपके जो देवबंदी हैं मौजूदा हाल में, वो भी मुशरिक ही कहते हैं। तो मैं इसी का जवाब मांग रहा नहीं हूँ कि नहीं ऐसा नहीं मेरे क्यों है? भाई, नहीं 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 कहते हैं, नहीं कहते। मैंने आपसे कहा ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़िए। आप दारुल का वेबसाइट खोल के देखिए, बताइए वहाँ पर कोई लिखा हो आप फतवा बताइए मुशरिक का, वहां तो मुझे जाके, बताइए। आप बताइए। नहीं नहीं, वहाँ मुशरिक का फतवा नहीं है, वहाँ बिदअती का फतवा है।
तो ये फिर ये क्या मसला है? मशरिक का फतवा नहीं है, बिदाती का फतवा है। अरे वो मुझे फतवा मशरिक का फतवा नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे वो फतवा भेजें। आप खुद खोल के देखे ना मेरे भाई, आप खुद खोल करके देखे कि क्या उलमाए देवबंद ने उलमाए बरेलवी को या अहले मसलक बरेलवी को मानने वाले को मशरिक कहा है? क्या आप खुद देखे ना खोल करके? हाँ हाँ जब आप बिल्कुल। इतने अच्छे खासे सुनिए सुनिए, ये उलमाए देवबंद ही तो है ये। देखिए ना। अरे मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, बात समझिए ना। हाँ मैं क्या कहा छोड़िए ना, आप जो दारूम का वेबसाइट वो खोल देखिए ना आप। अरे ये अब आप जो कह रहे ये हैं कहीं उलमा दिख नहीं देवबंद रही नहीं है। है। आप सुनिए, आप, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आप जिस उलमाए देवबंद के आप कह नहीं रहे हैं उलमाए देवबंद, आपके जहन में अगर ये है कि उलमाए देवबंद अल्लाह का रसूल मान तो बड़ा ठीक है, फिर तो मान लेते हैं। अगर आपके जहन में हो कि उलमाए देवबंद के क़याम से पहले भी थे, तब हम मान लेते हैं। अच्छा, यानी कि ये बताइए। इस्माइल दहलवी को आप लोग नहीं मानते कि ये तुम्हारे मौलवी हैं? नहीं, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, अगर आपके जहन में ये है कि दारुल देवबंद के क़याम से पहले भी देवबंदी मकतब फिक्र के लोग थे, तो फिर मैं आपको मान लेता हूँ कि हाँ हैं। लेकिन अगर लगता है कि आपके जहन में अगर ये हो कि दारुल के क़याम के बाद जो है कि देवबंदी मकतब फिक्र के लोग आए हैं, तो फिर आप उनको मेरे अकाबिर क्यों कह रहे हैं? हाँ सुनिए, इसलिए क्योंकि देखें देवबंदी तो नहीं थे, क्योंकि आपने जो बात कही है कि मदरसाए देवबंद बना है तभी से देवबंदियत है, ये हकीकत है, ये आपके मौलवियों ने भी अपनी किताब में लिखा है। चूंकि इस्माइल दहलवी को, चूंकि वो मतलब देवबंद से पहले, मदरसाए देवबंद से पहले के, तो उनको देवबंदियों ने कहा ये हमारे अकाबिर हैं, यानी कि उनके अकीदे ठीक है, उनकी किताब तकवीयतुल ईमान पढ़ना है इस्लाम है, ठीक है, तो देवबंदियों ने उन्हें अपना अकाबिर माना है ना, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अब ये कह दें कि वो आपके अकाबिर नहीं है, हम तो इसका इनकार कर रहे हैं कि हमारे तो नहीं है। आपके और आपके अकाबिर की इब्तिदा कहाँ से होती है? हैं? आपके अकाबिर की इब्तिदा कहाँ से होती है? क्या कि कहाँ से होती? मैंने आपके अकाबिर की इब्तिदा कहाँ से होती है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? का मतलब कहाँ से होती है? अकाबिरीन तो बहुत है हमारे। कहाँ से शुरुआत होती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मतलब कहाँ से शुरुआत होती है? मैंने कहने का मतलब ये है कि बरेलवी जो मकतब फिक्र है वो देवबंद के क़याम के बाद बना, और देवबंद मकतब फिक्र ये बरेलवी से पहले बना। तो अब उलमाए देवबंद या उलमाए बरेलवी तो उसके बाद ही ना। हाँ, बरेलवी से पहले कैसे बना मतलब? अहमद रजा खान की पैदाइश कब हुई है? अरे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोई हमारे बानी थोड़ी है कि उन्होंने हमारी जमात की बुनियाद रखी है, लेकिन मदरसाए देवबंद से पहले कोई देवबंदी नहीं था, ये हकीकत है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह से पहले मजार पे जाने, सुनिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह से पहले मजार पे जाने वाले मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम से मांगने वाले, न्यास वाता वाले मौजूद थे। कहाँ थे? सजदा करते थे कोई? क्या किसी बताइए। सजदा नहीं करते थे। हाँ, तो फिर सजदा कहाँ से आ गया? क्या मतलब? मस्जिद जन्नतुल बकी के अंदर, जन्नतुल बकी के अंदर कभी आप गए हुए हैं? जन्नतुल बकी के अंदर तमाम मजार बने हुए थे। कब बने हुए थे? अच्छा सुनिए, आज से 100 साल अभी भी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुए होंगे कि वहाबियों ने वो मजार तोड़े हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो मजार बने हुए थे, आपने तोड़ दिया है? हाँ, सैकड़ों साल से बने हुए थे। किसने बनाए? ठीक, अच्छा, सुन्नियों ने बनाए ना, तो सैकड़ों साल से जो मजार वहां बने हुए हैं, तो मजार बनाने का काम किसका है? सुन्नियों का। देवबंदी वहाबी तो कहते हैं ये शिर्क के अड्डे हैं। अच्छा सुन लीजिए, ठीक है। ये बताइए, क्या मक्कतुल मुकर्रमा में कुफ्र दाखिल हो चुका है क्या? ये इन सारी बातों से कोई फायदा नहीं है हजरत। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इस्माइल दहलवी जो है वो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, शिर्क का फतवा नहीं है। आप दारुल की वेबसाइट को खोलें, अगर इसके लिए आप कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप दारुल की वेबसाइट पर खोलें और देखिए, या अगर सोशल मीडिया पर आप हैं तो आप देखिए कि उलमाए बरेलवी, नहीं मैं क्या कहता हूँ, उलमाए बरेलवी कितने हैं जो उलमाए देवबंद को काफिर कह रहे हैं, और उलमाए देवबंद कितने हैं जो उलमाए बरेलवी को काफिर कह रहे हैं। दोनों का आप आंकड़ा खुद मिला सकते हैं।
दोनों का आंकड़ा आप खुद गिना सकते हैं कि बरेलवी मकतब फिक्र के कितने लोग हैं जो उलमाए देवबंद को काफिर कहते हैं, और उलमाए देवबंद के कितने लोग हैं जो बरेलवी को काफिर कहते हैं। तो खुद आप उनका निकाल जवाब, सकते हैं। अगर हमारे कोई भी उलमा देवबंदियों को काफिर कहते हैं तो उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम देंगे, हमारे पास है। लेकिन जो आपके तो अकाबिर वो इस्माइल जो देहलवी, नहीं मेरी नहीं तो बात सुने वो हजरत, जवाब मेरी तो सुनिए ना, बात सुने वो जवाब सबके पास है। हजरत, मेरी तो बात सुनिए ना, सुने, मेरी तो बात सुने सुनिए ना, मेरे भाई, नहीं हजरत, मेरे भाई, मेरी तो बात आपने सुने। कहा मैं अरे ये सुनिए ना कह मेरे भाई, रहा हूँ, आपने लेकिन कहा आपके नहीं। इस्माइल देहलवी साहब जो सुन्नियों को और अब मैं आपसे मैं आपसे सुन्नियों को सिर्फ नहीं मुशरिक पूछ रहा कह हूँ रहे कि हैं अबू जहल आपके, जैसा, वो उसका जवाब कब मिलेगा नहीं हमें? सुन्नियों को नहीं कहा जा रहा है, किसको उन्होंने कहा किसी जाता है? सुन्नी का नाम नहीं लिया। जो भी आदमी जाकर के कब्र पर सजदा करे, सजदे का सजदा नहीं लिखा है वहां पर, वहां लिखा है नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगे, अंबिया से, औलिया से। नहीं नहीं नहीं, सजदे को नहीं कहा जो उन्होंने। पहली बात नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को खुदा समझ करके मदद मांगना, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी नहीं नबी लिखा अलैहिस्सलाम को खुदा समझ वहां करके मदद मांगना। एक मिनट में इबारत पढ़ देता हूँ, आप खामा खा की बातें कर रहे नहीं, हैं। आपके बात पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं इबारत पढ़ एक देता बात जो है हूँ। ना, नहीं सुनिए ना, एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपने कहा कि क्या बोलते हैं, नहीं सुनिए ना, आपने कहा कि वहाबियों ने वहाबियों ने हाँ बिल्कुल ऐसा ही मजार जो है कि तोड़ दिया है मक्कतुल मदीनतुल बकी वो के सब अंदर। सुन्नियों ने तो मैंने बनाए कहा थे कि पहले। क्या, हाँ तो क्या मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों का एंट्री हो चुका है क्या? अब हुआ है ना वहाबियों का। माने जन्नतुल बकी में काफिरों का एंट्री, मक्का में काफिरों का एंट्री हो चुका है। हाँ हो चुका है ना, वहाबी मौजूद है वहाँ। तो फिर आप अपने ईमान की तजदीद कर लीजिएगा। क्यों? फिर अपने ईमान की तजदीद कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत तक के कुफ्र जो है कि मक्का में दाखिल नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, तो फिर मक्का और मदीने कयामत, के तो हम तो दरवाजे ये पर कह जो रहे है हैं ना कि कयामत करीब है। नबी नहीं अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप बात सुनिए, सुनने का वो तो रखिए। नहीं मेरे भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप सुन क्यों नहीं रहे? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं और कयामत किस तरीके से, सुनिए एक सेकंड सुनिए ना पूरी बात मेरी। बोहतान तराशी है। आप सुन क्यों नहीं रहे? सब जो है कि बोहतान आप सुन क्यों नहीं रहे? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप बोलते क्यों जा रहे हैं भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत और मैं, ओ हजरत, ईमान सुनिए, अरे हजरत, ये तकवीयतुल ईमान में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुशरिक हैं सुन्नी जो नबी अलैहिस्सलाम से मांगते हैं, साफ साफ लिखा है। इसका जवाब दीजिए आप। ईमान जो है आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? खाली बोले ही क्यों जा रहे हैं? ये तो समझाइए। नहीं आप सुन क्यों नहीं रहे? आपने सुनने का अरे हजरत, आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे ये तो समझाइए। आप या तो तकवीयतुल ईमान का जवाब दें, तकवीयतुल ईमान का जवाब। मैंने कहा ना आपसे कि आप दारुल क्या कहा? दारुल, तो फिर इस्माइल देहलवी ने गलत लिखा है फिर। अरे भाई वहाँ ही नहीं लिखा हुआ, वो जो आप कह रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है ही नहीं। अरे भाई मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना आपको इबारत पढ़। आप मेरे एक मिनट खामोश रहिए। अरे अमन भाई, अरे हजरत अमन भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ हजरत, आपके पास जो किताब है वो कहाँ से छपी हुई है? कौन से उससे छपी हुई है? देवबंद से छपी हुई है। दारुल उलूम देवबंद से तक़वियतुल ईमान छपी हुई है? देवबंद से छपी हुई है, मक्तबा फैसल से। मक्तबा फैसल से, ठीक है हजरत। बस मैं अभी इसे देख लेता हूँ, एक मिनट। अब सुनिए हजरत, आप बात करिए आप बात। हजरत अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं और कयामत ऐसे हैं कि जैसे ये दो उंगली मिली हुई। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कयामत के साथ साथ आने वाला नबी हूँ, यानी कयामत अब नजदीक है। और दूसरी हदीस शरीफ में है, सुनिए पहले, दूसरी सुन तो ले पूरी, अरे सुन तो ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कयामत आएगी तो मदीना शरीफ की जो जमीन है वो काफिरों को अपने अंदर से निकाल देगी। इसका मतलब साफ हदीस शरीफ से वाज़े हुआ कि इसका मतलब कुर्बे कयामत में काफिर दाखिल हो चुके होंगे अरब शरीफ में, जिसकी वाज़े दलील ये है कि जो वहाबी जो सुन्नियों का कत्ल करके, उन लोगों को कत्ल गारत करके, उन लोगों पे जुल्म करके वहां पे अपनी हुकूमत इन लोगों ने जुल्म से जो रखी है, तो इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि हाँ वहाबी काफिर बनके और मदीना शरीफ में दाखिल हो गए, क्योंकि कयामत करीब है। अब अल्लाह की रहमत से जमीन मदीना शरीफ की उन्हें निकाल देगी।
हदीस शरीफ से साबित है कि वहाबी काफिर है। कयामत अरे मेरे भाई कयामत करीब है, कब आने वाली है कयामत? वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन करीब है ना। सुनिए मेरे भाई, साबित हुआ ना हदीस शरीफ से। समझा ना है, उसका गलत मतलब आपने समझा है। क्या गलत मतलब समझा है? कर रहे हैं क्या मतलब गलत समझा है? फरमाया ना कि सुनिए ना, वो इस तो आना अवस्था का हाथीन, इसका मतलब आपने गलत समझा है। क्या समझा है गलत? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन मदीने की काफिरों को उगल देगी, निकाल देगी, जलजले आएंगे। तो जब तक वहां काफिर होंगे ही नहीं, जब तक जमीन मदीने की निकालेगी किसे? तो ये वहाबी जो वहां काबिज हुए हैं, गाजिब हुए हैं, तो इन्हें ही तो मदीने शरीफ की जमीन निकालेगी, क्योंकि यही काफिर है। और फिर जो पहले जो आपने हदीस पढ़ी ना, और फिर इस हदीस में जो आप अभी कह रहे हैं, दोनों में मेरे भाई मेल नहीं खा रहा। अरे बिल्कुल मेल है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत आने वाली है, यानी कि कयामत करीब है। और ये इस हदीस शरीफ से साबित हुआ। और इसका जुमला आपने क्या कहा है? नहीं, क्या कहा है? पढ़िए, क्या कहा है जुमला, आप क्या बताइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत मेरे साथ ऐसे ही है जैसे, क्या हदीस का जुमला? मैं वही बता रहा हूँ कि कयामत मेरे साथ ऐसी है जैसे ये हाथ की 2 उंगली। नहीं, ये तो हदीस का जुमला नहीं है मेरे भाई, ये क्या तो है? नहीं है, ये तो उर्दू आप बोल रहे हैं। ये तो आप तो क्या अरब में रहता हूँ क्या? मैं अरब में रहता हूँ, मैं तो उर्दू ही पढ़ूंगा ना। क्या अल्लाह के रसूल की हदीस उर्दू में थी क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने अरबी में फरमाया ना, तो मैं उर्दू हूँ ना, मैं तो हिंदी हूँ, तो मैं तो उर्दू में बोलूंगा ना। वो अरबी। अगर मैंने उर्दू में कुछ गलत बोला है तो आप बताइए, फालतू की बहस मत करिए। अगर मैंने उर्दू गलत बोली है, मैंने ट्रांसलेट गलत किया है, तो आप बताइए। बिल्कुल गलत, सही बताएं आप। गलत है जो सही क्या लिखा है बताएं। बोइस तो आना अवस्थातु का हाथीन हदीस का जुमला है, जिसका मतलब ये है कि मेरे बाद कोई नया उम्मती पैदा नहीं होगा, कयामत तक मेरी ही उम्मत रहेगी। ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कयामत के पूर्व को बताना मकसद है कि बस नहीं, वो हदीस नहीं है। आप दूसरी हदीस पढ़ रहे हैं और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मतलब इतना गलत कर रहे हैं आप, और उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप हदीस दूसरी पढ़ रहे हैं। आप अरबी बताइए। नहीं, आप अरबी बताइए, अरबी हदीस बताइए जो आप बताता कि मैं देख सकूं मेरे भाई जब क्या कह रहे हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं कि आपने गलत कहा है? नहीं, आप पहले आपने कहा कि दोनों अंगुलियों का इशारा आपने कहा। हाँ, अंगुलियों बिल्कुल बोली आपने, तो दोनों अंगुली वाली मेरे भाई यही हदीस है, दूसरी कोई हदीस नहीं। मतलब यही हदीस है, दूसरी कोई हदीस नहीं है? नहीं, दोनों उंगली वाले बोइस्तवाना वस्तातु का हाथीन, यही हदीस है जो जिसका आप उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो अरबी की इबारत यही है। याद रखें, आपने ये कहा है, इसके अलावा कोई हदीस नहीं है। सही है? नहीं, किस बात के लिए? यही कयामत वाली? नहीं, उंगली वाली। हाँ, तो आपने कहा है ना कि उंगली वाली। हाँ, आपने कहा ना कि उंगली वाली, इसके अलावा कोई हदीस नहीं है जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा का मतलब सबका मफहूम यही है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हैं हजरत? आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आप गलत बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने आपने कैसे? अरबी पढ़ी है, तो आप बोल रहे हैं कि अरबी पढ़ी है। तो सुनिए, आपने कहा, आपने जो हदीस बताई है उसको आप बयान करके कह रहे हैं कि इस हदीस के अलावा उंगली वाली कोई हदीस नहीं है जिसमें कयामत का जिक्र हो, यानी कि मैं और कयामत ऐसे हैं जैसे ये उंगली आपस में मिली है। ठीक है, आपने ये कहा कि ऐसी कोई जुमला अपनी तरफ से बोले, मिली हुई नहीं। अरे मिली हुई नहीं उंगली, बताइए ना। एक सेकंड, आपने क्या कहा कि ये जो उंगलियों वाली हदीस है कि ये जो उंगली मिली हुई है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ठीक है, अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उंगली मिली हुई, हाँ बिल्कुल। का मतलब क्या होता है? सटा हुआ। हाँ, तो क्या? हाँ, बिल्कुल मिला हुआ। तो आपने ये कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। ठीक है, मिला हुआ। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, मिली हुई। नहीं, आपने क्या कहा बताइए मेरे भाई। अरे मेरे भाई, अभी आपने ये कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है जैसी हदीस मैं बयान कर रहा हूँ। एक सेकेंड, आपने ये कहा कि देखें, मैंने हदीस शरीफ बयान की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं और कयामत ऐसे ही हूँ जैसे ये 2 उंगली आपस में मिली है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। मिली है, यही क्या मिली? हदीस में यही जुमला, अगर पेट में जुमला को रिकॉर्ड करता हूँ
یہ جملہ میں ریکارڈ کرتا ہوں اور اسی جملے کا حدیث آپ پیش کیجیے مجھے. ہاں ٹھیک ہے. کے ساتھ حدیث پیش کیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی یہ بات ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہی موجود نہیں ہے. آپ نے حدیث پہ جھوٹ بول دیا. بالکل نہیں. سنیے کیا نہیں ہے حدیث؟ کیا حدیث کیا نہیں ہے یہ بتائیے. قیامت میں اور آپ کا، میں آپ کے بارے میں نقل کر رہا ہوں، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجا گیا جیسے دونوں انگلی ملی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر یہ فرمایا. ملا کر نہیں فرمایا میرے بھائی، یہی تو آپ سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے آگے اگر کہیے تو آگے نہیں، بس بات اگر کہیے تو میں اس بات کو ریکارڈ کر لیتا ہوں، پھر مجھے آپ کبھی حوالہ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عربی یہ بات بھیج نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے شاید آپ عربی نہیں پڑھے. اب آپ خاموش بیٹھیے، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث نہیں ہے ایسی کوئی. ہاں آپ رکیے نا، آپ صبر کریے. یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں موجود ہے. ہاں بتا رہا ہوں یہ حدیث، یہ صحیح مسلم کی یہ. ارے سنیے نا بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بات ہے؟ کیا دقت کیا ہے؟ آپ سن کیوں نہیں رہے؟ صحیح مسلم کی 45 نمبر کی حدیث شریف ہے. میں پڑھ رہا ہوں حدیث شریف، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا. یوں محسوس ہوتا گویا آپ دشمن یا شام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ شام کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والے ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی. اب دیکھیں یہاں الفاظ جو دیوبندی صاحب نے جو یہاں پر جھوٹ بولا حدیث شریف میں لکھا ہے آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر. ان نے کیا کہا تھا؟ ملی ہوئی کا الفاظ نہیں ہے یہاں پر، صاف صاف لکھا ہے انگلی کو ملا کر فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. نبی علیہ السلام نے ملا کر انگلیوں کو فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. جیسے کہ میں نے حدیث شریف بیان کی تھی اور یہ دیوبندی صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کوئی حدیث شریف ہی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے تھے. اسماعیل دہلوی کا انہوں نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، جبکہ یہ کتاب آپ کو یہاں ممبئی سے چھپی ہوئی ہے، گوگل پہ بھی اس کا PDF موجود ہے. پیج نمبر 20 پہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو، انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کا بندہ ہی سمجھ کر، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے مدد کریں گے یہ سمجھ کر بھی اگر کوئی پکارے تو وہ ابو جہل جیسا مشرک ہے، استغفر اللہ. اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر ہیں. ارے بھائی، دیوبند حقیقت میں مدرسہ دیوبند جو ہے وہ نیا ہی ہے، دیوبندی نئے ہیں، لیکن اتنے غلیظ عقیدے اسماعیل دہلوی کے ہونے کے باوجود بھی دیوبندیوں نے اسماعیل دہلوی کو اپنا اکابر مانا. کیونکہ اگر اسماعیل دہلوی کو وہ اپنا اکابر نہیں مانتے تو پھر یہ کہاں سے ثابت کرتے کہ دیوبندی پرانے ہیں؟ تو ان لوگوں نے دیوبندیوں کو پرانا ثابت کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی کو اپنا اکابر بنا لیا تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم بھی سنیوں پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، اسماعیل دہلوی نے بھی لگائے ہیں. تو ان نے مجبوراً اسماعیل دہلوی کو اپنا اکابر بنایا. تو حضرت یہ دیکھیں، یہ دیوبندی بھاگ گئے نا. یہ تو بہت پہلے بھاگ گئے، جب آپ نے کہا نا وہی یہ دیوبندی صاحب جو مطلب بھاگ گئے وہ کال کاٹ کے. تو حضرات جیسا کہ آپ نے سنا، آپ نے سن ہی لیا کہ یہ کتنی زیادہ مکاریاں کر رہے تھے. اسماعیل دہلوی کو لے کر کے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا اکابر ہے، اسے ثابت کرو. الحمدللہ ہم نے ثابت بھی کیا. اور پھر حدیث شریف پر بھی یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ بھی آپ نے سنا. تو یہ کتنی مکاریاں کر رہے تھے، یہ دیوبندی کتنے مکار ہوتے ہیں یہ تو آپ نے سنا. تو ان کو جو ہم نے تقویت الایمان پیج نمبر 20 کا حوالہ دیا تھا تو شروع میں ہم سے پیج نمبر 20 کی جگہ 22 نکل گیا تھا. تو ہم نے جب دوسری بار بولا تو اس کو ہم نے 20 ہی بولا. اس کو تاکہ کوئی بھی سنے ریکارڈنگ تو وہ شروع میں جو ہم نے 22 بولا ہے تو وہ 22 نہ چیک کرے بلکہ دوسرا کے جو ہم نے 20 بولا ہے اس کو چیک کرے.
بہرحال ہم نے ان کے سامنے 20 اور 22 دونوں بولا تھا، تو انہوں نے چیک کیا لیکن انہیں نہیں ملا. یہ ان کی مکاری تھی کھلی، کیونکہ یہ چیک ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم تمہیں بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو بھی انہوں نے واٹس ایپ پہ لیا نہیں وہ حوالہ. یہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایسا ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مکاری کر رہے تھے. تو دوستو یہ ایسے ہی مکاریاں کرتے ہیں، اس لیے تاکہ صرف گھماتے رہیں سامنے والے کو گھماتے رہیں اور رزلٹ کچھ نہ نکلے. مگر الحمدللہ رزلٹ یہ نکلا کہ دیوبندی مکار ہوتا ہے اور وہ مکار ثابت ہو گیا. یہ رزلٹ نکلا الحمدللہ. تو آپ بھائیوں اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ